welcome back to my YouTube channel Counting Path. Let's start video number 6, which is based on playlist Mastering GST Interview. Today topic is Advanced Journal Entry under GST Part 2. In Part 1, we have covered ITC and their reversal entries, which every manager or senior manager should know. In this video, I am going to cover the basic or advanced level sales and their representative GST entry at the time of GST credit note or debit note, and how to manage their GST reconciliations. Let's start video number 6. What is the first question? If interview asks to test your knowledge, how do you account for GST when goods are returned and the original sale was made in different financial year? Let's suppose he asks कि एक सेल मैंने लास्ट 28 ऑफ द मार्च 2025 को रेज हुआ था एक इनवॉइस, ठीक है। अब मेरे को उस पर क्रेडिट नोट रेज करना है, ठीक है, यानी एक्चुअल में गुड्स रिटर्न करनी है, कुछ हो गया, एबीसी रीजन हो सकता है। तो व्हाट इज द जीएसटी ट्रीटमेंट? तो सबसे पहले आपका आंसर क्या रहना चाहिए? Good return in a different financial year require careful GST treatment through credit notes. As per the Section 34 of CGST Act, credit note related to a financial year must be issued by 30 November of the following year or filing date of annual return, whichever is earlier. What is the last date of raising a credit note for this invoice? Invoice date is 28 March. The last date is 30 November. Or what is annual return? Like GST 9. लेट्स सपोज अगर जीएसटी 9 की डेट 31 दिसंबर है, ठीक है, और ये इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर होती है, यानी ग्रेस पीरियड हमें जो मिलता है ऑलमोस्ट हमें 8 मंथ का ग्रेस पीरियड मिलता है, अप्रैल टू नवंबर, ठीक है। अगर यही डेट उससे पहले होती तो उसके पहले विच एवर इज अर्लियर, कि यहाँ ये अर्लियर होगा या ये 30 नवंबर डेट, तब तक हम क्रेडिट नोट रेज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका कोई जीएसटी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आई एम डिस्कसिंग। If issued within the time limit, can reduce GST output liability. What is the sale return entry? If I ask you, ठीक है, sale return entry is basically sale return debit, output GST first at the time of sale it is credit, now it is debit to vendor account. ठीक है? If issued within the limit, it will reduce our GST liability. ठीक है, our liability is in credit, or when the CN days, the some liability is shown as output debit side. The net balance credit is less. Must be reported in GST1 and 3B. There is column of and in GST1 credit note details, or in 3B you have to less the ITC. If issue after the deadline, no GST adjustment is allowed. उसकी कोई भी adjustment नहीं होगी, only accounting impact. Treat as expenses or discount. ठीक है, उसके फॉर एग्जांपल ये डेट अगर मैं कहूँ कि मेरी इनवॉइस डेट थी 28 मार्च 2025, ठीक है, और मैं क्रेडिट नोट रेज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2025, तो इस केस में क्या होगा? जीएसटी की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी। आपको जो भी क्रेडिट नोट आप रेज कर रहे हो ना, आपको उसका एज ए एक्सपेंस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर कोई भी यानी एक्सपेंस ट्रीटमेंट कर लो, आप सेल रिटर्न कर लो, बट उस पर कोई भी आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। क्लियर है? On what is the journal entry? Basic sale return entry. What is the sale return? Simple. Reversal of sale is sale return. The output debit to vendor credit. Journal entry after return sale return debit to vendor account. No GST return or GST is not adjusted. What is the tip for a manager, senior manager? As a senior manager, track sale return aging, flag any case close to GST cutoff date to ensure timely credit note issuance. Now move to second question. How do you handle GST accounting and reporting for discount offered post sale? What is post sale? For example, you already know CD discount, rate discount, limit discount. Okay. I'm giving you example of limit discount. For example, if we had target, let's suppose I'm sales to B. Okay. First, at the time of agreement, the rate is decided at the rate of that post rate is 35. But my sale BD told to B, but if you achieve the target of 1 lakh quantity, the rate would be 30 रुपीज। यानी कि जो भी रेट लगेगा इन फ्यूचर, अगर आप 1 लाख क्वांटिटी को टच कर लेते हो तो रेट लगेगा 35, बट इनिशियल रेट था 35, जो इन्वॉइसिंग हो रखी है वो 30 हुई, बट लास्ट में क्या हुआ? रेट चेंज हो गया आफ्टर टारगेट। अब टारगेट अचीव होने के बाद उसको रेट तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब रेट सारे बिलों को तो आप चेंज नहीं कर सकते, मैन नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम उन्हें जो डिस्काउंट दे देते हैं,
ठीक है, जो भी उनका डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि उनकी 1 लाख क्वांटिटी का रेट डिफरेंस बना ₹5, तो टोटल 5 लाख का जो डिस्काउंट बनेगा वो हमें रेज करना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में हमें या तो क्रेडिट नोट रेज करना पड़ेगा या फिर इसको एज एक्सपेंस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट नोट रेज होगा तो जीएसटी की ट्रीटमेंट होगी, अगर एक्सपेंस ट्रीट आउट करना पड़ेगा, सिंपल डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा, तो नो जीएसटी। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द formalized answer, how to answer it. For sale accounts such as year and volume discount are typically adjusted by credit note under Section 34 of the CGST Act. Condition of GST impact on discount. Discount must be established in agreement before or at the time of supply. Must be linked to the specific invoice. Buyer must reversal proportionate ITC if already claimed. अब इस केस में अगर वो उसने इसका आईटीसी, अब एक कंडीशन हो जाती है, इफ कंडीशन मैट जीएसटी इज रिड्यूस बाय क्रेडिट नोट, इफ नोट मैट डिस्काउंट इज नॉट एडजस्टेड इन जीएसटी रिटर्न। ठीक है, अगर वो यहाँ पे कहा जाता है कि मैं जीएसटी का रिवर्सल करूंगा तो कंडीशन मैट, अगर नहीं कहता तो सिंपल सिंपल आपको डिस्काउंट डाल देना। अब इस केस में अगर कंडीशन मैट हो जाती है ना तो आपने सीएन रेस करोगे ना उसे, ठीक है ना, कुछ भी सीएन रेस करोगे, सीएन रेस तभी करोगे जब सीएन रेस करने के बाद उससे डेबिट नोट रेस जरूर करवाना, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब कई कई कहते हैं कि अपने एंड पे तो सेल रिटर्न कर देते हैं, वेंडर अपने केसेस में डेबिट नोट रेस नहीं करता। काफी केसेस मिलते हैं हमें जब हम किसी बड़ी एमएससी या छोटे स्मॉल टैक्स पेयर के साथ करते हैं, तो काफी केसेस मिलते हैं कि वो डेबिट नोट को रेज नहीं करते, तो उस केसेस में हमें मैट करना पड़ता है। अब व्हाट इज द अकाउंटिंग एंड इफ जीएसटी एडजस्टेड इज अलाउड, सेल रिटर्न output at GST, CGST, whatever it is, to vendor account A plus X plus Y total to vendor. Senior professional must ensure contextual terms support GST reversal, proper linkage to original tax invoices, reflect in GST 1 by credit note table and GST 3. What is the next question? How are credit and debit note treated under GST and how do they impact return and books of account? सबसे पहले जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कि क्रेडिट नोट रेज होता है एट द टाइम ऑफ सेल रिटर्न, तो डेबिट नोट रेज करते हैं जिसे डीएन बोला जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। आंसर, हाउ टू आंसर इज credit debit note under GST are adjustment to original invoices as must be linked to them. What are the credit note impacts? What impact credit note? Reduced sale revenue, reduced GST liability in GST 1, adjusted in GST 3B for the month in which the note is issued. What are the credit journal entry for credit note? Sale return, output GST to debtor account. Then, what are the debit note impacts? Sale increase, you have to report in GST 1. Addition GST liability arise. At the time of purchases, we receive input, ठीक है, in form of ITC. But at the time of debit note, we are going to return the purchases. So our sale increase, our tax liability increase, these are increases. Proper, what are the explanation of this? Proper tracking is essential to avoid ITC mismatch to the customers. And fourth number is, what are the general entry for GST on advances received for services? ठीक है, in case of services not for goods, सबको पता होना चाहिए कि व्हेन वी रिसीव, इफ आवर इंडस्ट्री इज सर्विस बेस्ड, कि अगर मेरी कंपनी सर्विस बेस्ड है तो मेरे को ड्यूरिंग द मंथ जो भी एडवांसेस रिसीव करता हूँ, मेरे को गवर्नमेंट को उस पर क्या करना पड़ेगा, जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, यही अगर मेरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की है यानी या फिर ट्रेडिंग की है, तो ये कंडीशन मेरे को मैच नहीं होती, यानी ये कंडीशन मेरे पे अप्लाई नहीं होती। बट अगर मेरी इंडस्ट्री सर्विस बेस्ड है तो ये कंडीशन मेरे को मिलती है। ठीक है, अब हाउ टू आंसर इट? Under GST, advance received for services is taxable immediately and GST liability arise on receipt of the advance as per the Section 13 of CGST Act. Example, advance is 1 lakh plus 18% GST and total advance received is 1 lakh 18,000, and on a receipt of advances, bank account debit to vendor account 1 lakh to CGST account 18,000. ठीक है, on raising invoice letter, advance received for customer to revenue account, invoice is booked in P&L. ठीक है, एंड दिस पार्ट विल इम्पैक्ट अवर, ठीक है, एबिलिटी साइड, ठीक है, बैंक अकाउंट एसेट, ठीक है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर,
What are the compliance requirement for inter-branch transfer under GST and how do they impact financial reporting? इन लास्ट वीडियो मैंने क्लियरली किया था कि इंटर ब्रांच एक एंट्री बताई थी कि कैसे इसको रिसीव करना है, बट ये फाइनेंशियल को कैसे इंपैक्ट करता है इसको समझेंगे. अंडर जीएसटी ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स आर ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन. लेट्स सपोज माय हेड ऑफिस इन दिल्ली and my one another office is in Punjab, second one in Rajasthan. They both have their separate GST. सेम पैन सेम रहेगा बट जो जीएसटी रहेगा ना वो डिफरेंट रहेगा. ठीक है, सेपरेट. अब इन दिस केसेस क्या होता क्या इंटर ब्रांच. ठीक है, लेट्स सपोज हेड ऑफिस में गुड्स पड़ी है वो आलो. अब विशाल मेगा मार्ट का केस ले लो. जो भी विशाल मेगा मार्ट के सप्लायर्स हैं, जो विशाल मेगा मार्ट को गुड्स सप्लाई करते हैं, वो करते हैं विशाल मेगा मार्ट के हेड ऑफिस यानी गोडाउन. ठीक है, हेड ऑफिस गोडाउन कैपा साइड में शायद उनका गोडाउन. ठीक है, अब वो गोडाउन से डिलीवर होती हैं ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, अब इसे क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट रेट. ठीक है, अब ये जो सप्लाई होती है ना इसको ट्रीटेड एज किया जाता है टैक्सेबल सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन एज पर दी शेड्यूल 1. इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं आनी कि इसको आपको बिल के अगेंस्ट में आपको इसको पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये क्या है, इंटर ब्रांच ट्रीटमेंट होती है जीएसटी एक्ट में. अदर केसेस में क्या होता है कि आपको विद इन 180 डे पेमेंट करनी पड़ती है वेंडर को, अदरवाइज इफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल, CONS एप्लीकेबल, आपको 180 डे के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है. और अगर पेमेंट नहीं करते तो आपको जीएसटी क्या करना पड़ता है, रिवर्सल. ठीक है, बट ये कंडीशन यहाँ नहीं मैट होती इंटर ब्रांच में. अब इसका क्या कंप्लेंसी रहती है, डे से टैक्स इनवॉइस विद एप्लीकेबल आईजीएसटी. इंटर ब्रांच हो रही है तो क्या लगेगा, इंटर ब्रांच हो रही है तो मतलब आईजीएसटी लगेगा ना, अदर स्टेट में जा रहा है. जनरेट एन ईमेल इफ एप्लीकेबल, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री विद आउटपुट आईजीएसटी एट सेंडर एंड एंड इनपुट आईजीएसटी एट दी डिस्प्ले. अब कह लो मैं गोदाम से माल जा रहा है, गोदाम दिल्ली में है, अब रिसीव हो रहा है पंजाब में. ठीक है, आउटपुट दिस साइड, condition met. And impact on, what are the impact on, sale increase at the transferring branch even if no revenue is on. ये आपको पीएनएल में दिखानी पड़ेगी. डज नॉट मैटर कि आपकी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रहेगी ना उसमें ये फिगर आएगी. ठीक है, उसके बाद परचेजेस स्टॉक वैल्यूएशन इंक्रीज एट द रिसीविंग ब्रांच. अब जो ब्रांच इसको रिसीव करेगी उसकी इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, उसकी परचेजेस भी इंक्रीज होंगी. टैक्स इज न्यूट्रल ड्यू टू आईटीसी अवेलेबिलिटी बट इफेक्ट टर्नओवर एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन. जो टैक्स की अवेलेबिलिटी है ना वो न्यूट्रल रहेगा. ठीक है, कई केसों में न्यूट्रल रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक ट्रांसफर को घुमा के काफ़ी बोगस कंपनियां क्या करती हैं, बोगस इनवॉइसेस रेज करके, काफ़ी, मैंने सभी नाम नहीं लूंगा ना ही मेरे को पता, बट काफ़ी केसेस में होता है कि इंटर ब्रांच दिखा के टैक्स को बचाया जाता है. क्योंकि जब सेल हो रही है, इस केस में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर सेल होगी पंजाब में, ठीक है, तो जीएसटी तो पंजाब वाले को पे करना पड़ेगा ना. ठीक है, हेड ऑफिस में तो आईटीसी पड़ा ही हुआ है काफ़ी, उसने ट्रांसफर किया इसको, अब पे किसको करना है, पंजाब वाली ब्रांच को. अगर यही है जो आईटीसी था यानी स्टॉक था राजस्थान में आता तो ट्रांसफर किसको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे कौन करेगा, राजस्थान का जीएसटी. आप समझिए जीएसटी ने सेपरेट एंटिटी माना जाता है. जैसे कंपनी के केस में कंपनी सेपरेट एंटिटी, वैसे एक जो अलग जीएसटी ले लिया वो अलग की तरह ट्रीटमेंट होगा. उसका प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है. कभी जिसने जीएसटी अप्लाई किया होगा ना उसको पता होगा कि एक जीएसटी को अप्लाई करने के लिए उसके लिए रेंट एग्रीमेंट होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, एक प्रीमिसेस होती है वहाँ पे. अगर आज की डेट में तो जो जीएसटी ऑफिसर है वो तो प्रीमिसेस पे विजिट भी करते हैं, तो इसलिए जीएसटी को सेपरेट ट्रीटमेंट देनी होती है. What are the key internal controls a finance manager must implement around GST journal entries? Your answer is automate tax posting in ERP. Tax posting means कि वहाँ पे आपको बार बार जीएसटी वन की वर्किंग ना करनी पड़े, जीएसटी 3 की वर्किंग ना करनी पड़े. आपको बस डाटा एंट्री करनी है. आपके जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे या सीनियर एग्जीक्यूटिव, उन्हें बस डाटा पोस्टिंग करनी है. आपका जो डाटा वो ऑटोमेटिक रेडी हो जाए, मैनुअली डाटा ना बनाना पड़े. देन उसके बाद लोग जीएल फॉर मैनुअल जीएसटी रिपोर्टिंग स्पेशली फॉर आउटपुट जीएसटी. आपको सबसे पहले सभी कंपनी में होता है, हमारी में अगर मैं बात करूँ हमारी में होता है, हम आउटपुट जीएसटी तो वो राइट दे ही नहीं रखा किसी को, कोई भी ये इस वाली जीएल की पोस्टिंग कर ही नहीं सकता. ठीक है, वो होगी तो एंड यहाँ उसको करेगा मैनेजर, या मैनेजर के बात करेंगे जो बंदा जीएसटी वन फाइल करा है, उनके रिस्पॉन्स. अदरवाइज ये जो एग्जीक्यूटिव आईपीपी उनके पास राइट्स नहीं होते. देन टैग रिवर्सल अंडर रूल 42 for 40T for common credit, 40T for and reversal of ITC.
on the basis of assumption and taxable supplies. Then last, implement vendor compliances check for valid GST and invoices formats. And last, ठीक है, this is the last of our video. In part 3 I am cover the part of notice litigation and what are the common notices which are every company faces. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा. आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.